Hi guys, welcome to the first video on my channel and अगर आपने टाइटल देख के ये वीडियो क्लिक किया है then I'm sure and I hope कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा because this video is very close to my heart and I have been trying to make this video and I've been trying to record this and all the preparations since long time, like since long means very long. Yeah, but yeah, I've finally gathered the courage to record this because I really wanted to put it out on the internet and हो सकता है कि मेरे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करने से कुछ लोगों के लिए हेल्प हो जाएगी. So yeah, I just really want to put it here. So yeah, let's get started to the video without any further delay. Okay. So this video is about my JEE journey, which perhaps I like did before 3 years. It's been 3 years since I've given my JEE. Okay, like around 2 to 3 years. Okay, like approximately जो मेरा preparation phase था वो 3 साल था. Like if I tell you, it was not exactly from 11th standard, but yeah, it was after that. Like you can say after 12th mid and 12th के बाद. Before actually going towards the actual journey, मैं आपको थोड़े से अपनी बैक स्टोरी बताना चाहती हूँ because you also know that let's take it as if you are starting some course and उस course से पहले आपको कुछ prerequisites सीखनी पड़ती है तो उसके हिसाब से you need to know my back story also because without that you won't be able to एन्जॉय दिस वीडियो. ओके, मतलब जितना मैं इस वीडियो को बनाने में एन्जॉय कर रही हूँ आपको भी उतना देखने में उस चीज़ को लाइक यू शुड बी मोर क्यूरियस टू नो दैट हाँ आगे क्या होगा एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी क्यूरियस फॉर मी एज वेल. सो या, तो आई वुड टेल द बैक स्टोरी. तो मैं स्कूल में कैसी थी. सो बेसिकली मैं एक जस्ट क्विक रिकैप देना चाहती हूँ. तो मैं स्कूल में I was a very mediocre student. Like I would describe myself as a average to mediocre student. I would not say कि मैं topper थी या फिर मैं बहुत ज़्यादा अच्छा marks लेके आती थी. No, मेरे लिए अच्छे marks लाना once in a blue moon था because I mean there are some things that you can't explain, right? No matter how much you study, no matter how much efforts you put, तुम किसी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो एंड तुम अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ रहे बिकॉज यू नो ना कि तुम कितना भी कुछ चीज़ों में कितना भी तुम एफर्ट्स डाल लो कितना भी टाइम डाल लो वो चीज़ आउटपुट नहीं आ पाती. उतना आउटपुट तुम नहीं ले पाते. वट एवर इज देयर इन आर कैपेसिटी हम उतना ही दे पाते हैं and उतना ही हम आउटपुट एक्सपेक्ट कर पाते हैं. तो मेरे लिए ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालती थी. आई वुड स्टडी अ लॉट. आई वुड do lot of hours of hard work and इतनी sitting hours होती थी मेरी and I would come to that point later also कि sitting hours do not matter. ठीक है, sitting hours do not matter in your study preparation. No matter which exam you study, whatever, चाहे वो competitive exam हो, चाहे वो school exam हो, चाहे वो college के exam हो, चाहे वो government exam हो, whatever, मैंने इतना lesson तो सीख ही लिया है कि सिटिंग आवर्स डू नॉट मैटर. नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट. सो हाँ, तो मैं एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थी एंड मेरे लिए मार्क्स अच्छे लाना वॉज लाइक अ ड्रीम. आई वुड ट्राई माई बेस्ट. I would devote my whole heart, my soul to that one exam. And school के exams were like legit battle for me. मैं सब कुछ छोड़ देती थी, खाना पानी like ये ज़्यादा हो गया. I never used to enjoy before my school exams. Okay, it was like something. बाहर से लोगों को देख के लगता था कि नहीं मैं enjoy कर रही हूँ, but that's not the case. अंदर ही अंदर मेरे को बहुत anxiety होती थी. ठीक है, but I never used to show it बाहर. तो मैं ऐसे एकदम पढ़ती तो थी. ठीक है, पूरा टाइम पढ़ती थी बिकॉज मेरे अंदर था कि मैं ज़्यादा देर पढ़ूंगी तो मुझे ज़्यादा देर कॉन्सेप्ट समझ आएंगे, विच इज़ ट्रू. ठीक है, the more you devote the more you understand. But there is one, like वहाँ पर एक ब्रेक आ जाता है कि तुम कितना ही ग्रास्प कर पाते हो. लाइक हाउ मच कॉन्सेप्ट्स यू कैन ग्रास्प इन दोज आवर्स मैटर्स द मोस्ट एंड हाउ मच यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट, हाउ मच यू कैन पुट इट इन दैट एक्चुअल डे ऑफ एग्जाम. सो मैं ऐसे लाइक स्कूल में भी मैं ऐसे ही चलता रहा मेरा.
10th तक, एंड देन आई टुक पीसीएमबी, ठीक है। एंड 11th भी ऐसे चला गया, तो 11th मेरा कोविड था। सो इफ यू डोंट नो, आई वाज फ्रॉम द कोविड बैच, लाइक मैंने 10th पूरी कोविड में गई थी, 11th भी कोविड भी गई थी, तो हमारे 10th के बोर्ड एग्जाम्स नहीं थे। सो या इफ यू आर फ्रॉम द 2021 बैच, then just comment that you are also on the batch, because I remember that 2021 बैच के जो बच्चे थे वो पहले बहुत खुश हो रहे थे कि उनका बोर्ड कैंसिल हो गया, बट गेस व्हाट, मैं खुश नहीं थी क्योंकि मैंने बहुत पढ़ाई करी थी। आई वाज लाइक कि मैं बोर्ड अच्छे ही लाऊंगी, बट बोर्ड ही कैंसिल हो गए थे, तो आई वाज वेरी डिसहार्टेंड। एंड देन जब मार्क्स आए थे तो वो भी कम आए थे, तो आई वाज रियली डिसहार्टेंड विद दैट। तो मैं इस चीज़ से मैं 11th पे गई थी, एंड 11th में भी अगेन द सेम लूप। 11th में तो मेरे और कम नंबर आने लग गए थे, एंड टीचर्स यूज्ड टू गेट डिमोट, मतलब वो मेरे को इतना डिमोटिवेट करते थे। आई फील सो बैड सेइंग दैट, बट या आई विश आई कुड से कि मेरे टीचर्स अच्छे थे, ठीक है। एक दो टीचर्स मेरे ऐसे थे कि जो डिमोटिवेट करते थे, बट मेरी जो मैथ्स की टीचर थी, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर हर, लाइक शी इज दी बेस्ट, लाइक आई स्टिल रिमेंबर हर अ लॉट, एंड उनके वजह से मेरा जो आगे इम्प्रूवमेंट हुआ है वो उनके वजह से ही हुआ है। बट मेरी जो केमिस्ट्री टीचर थी, मेरी जो फिजिक्स की टीचर थी, आई कांट एक्सप्लेन, ठीक है, इट्स अनएक्सप्लेनेबल, एंड इफ समवन हैज गॉन थ्रू द सेम शिट, यू विल नो, ठीक है। सो आई ऐसे ही मैंने 11th कर लिया था, एंड कोविड में था तो कुछ ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अब आता है 12th स्टैंडर्ड। सो 12th स्टैंडर्ड मेरे लिए एक ऐसा था कि मुझे एंग्जाइटी होती थी कि मेरे को 12th के बाद करना क्या है। मुझे इतना पता था कि मेरे को बीटेक करना है, बट आई डिडंट नो कि मुझे कि क्या करना है। बीटेक करना है, बट बीटेक में क्या करना है। आई डिड नॉट हैव एनी कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट। मेरे पास सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स थे, जो पीसीएमबी एंड इंग्लिश, और मेरा प्योर फोकस था पीसीएमबी में ही। नो मैटर मैं कितने भी खराब नंबर लेके आ रही थी, ठीक है। 11th के मेरे फाइनल में यू कांट बिलीव मेरे कितने नंबर आए थे। आई बेयरली पास इन ऑल द सब्जेक्ट्स, बिकॉज ऑनेस्टली मेरा कोई ट्यूशन नहीं था, एंड मैं ऑनलाइन पढ़ाई कर रही थी, एंड ऑनलाइन पढ़ाई भी कितना बड़ा एक हद तक स्कैम होता है। I would come to that point later, but yeah, it for me it was like some not a game changer for me. For me, a game changer तो इस जर्नी में ऐसा कुछ था नहीं, बट हाँ, छोटे छोटे गेम चेंजेस थे मेरे लिए। सो मैं ऐसे सोचती थी कि यार मुझे तो जेई करना है, ठीक है, मुझे जेई करना है, मुझे नीट नहीं करना, बिकॉज मुझे डॉक्टर बनने का कोई शौक नहीं था। आई वॉज कीन टू बिकम, यू नो, मतलब मुझे इंजीनियर ही बनना था। आई हैड इंटरेस्ट, आई माय फेवरेट सब्जेक्ट वाज मैथ्स, आई वाज रियली इंटरेस्टेड इन मैथ्स, एंड आई वाज लाइक कि मैं मैथ्स ही करूँगी, बिकॉज लाइक आई मुझे ना फिजिक्स पसंद थी ना केमिस्ट्री पसंद थी, बट या मैं दोनों बहुत ईगरली पढ़ती थी। बट क्या होता है ना, जैसे मैं मैथ्स में अगर 10% देती थी ना, तो मेरे मैथ्स में आउटपुट ज़्यादा आता था, मतलब मार्क्स ज़्यादा आ जाते थे। बट फिजिक्स केमिस्ट्री में मैं अगर बहुत पढ़ूँ फिर भी मुझे नहीं आते थे। ये मेरे लिए एक ड्रॉबैक था, बट मैंने ये इन सब चीज़ों में फोकस नहीं किया। एंड आई 12th स्टैंडर्ड वाज मेरा ऑफलाइन था, तो मैं स्कूल जाती थी। 12th में भी मेरा ऐसा था कि आई वाज वेरी डिटर्मिन्ड टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। तो जिगरा था कि हाँ, मैं करके ही रहूँगी, मैं करके ही रहूँगी। तो मैंने 12th में एक ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन किया था, मैं जिसका नाम नहीं लेना चाहती ऑब्वियसली। एंड वो ऑनलाइन कोचिंग में मैंने 1 साल की ली थी। आई वाज लाइक मैंने 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया था, एंड मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत इंसिस्ट किया था कि प्लीज़ मुझे ये करवा दो। आई वांट टू, यू नो, डू दिस, ठीक है। तो मेरे पेरेंट्स ने 1 साल का कुछ फीस दिया, एंड पता है मेरे पैसे फूक गए थे उसमें, मतलब पेरेंट्स के पैसे फूक गए थे। बट या लाइक क्लासेस मैं अटेंड नहीं कर पाती थी, ठीक है। तो मेरा 8 टू 2 o'clock तक स्कूल होता था, एंड मैं घर से, मतलब मैं घर कितने बजे आती थी, 2:30 बजे के आसपास, 2:30 या 3, बिकॉज माई स्कूल वॉज वेरी क्लोज टू माई हाउस। सो वो मेरा एक एडवांटेज था कि इतना ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। बट तो मेरी ये सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने ऑफलाइन ज्वाइन नहीं किया था। आई जॉइंड एन ऑनलाइन कोचिंग, एंड दैट टू फॉर जेई। I should have joined coaching for, you know, boards, for 12th standard, but I did not. It's like मैं सीधा खुदक गई थी जेई में, जो कि आई थिंक बेयरली 9 महीने बाद थे। बट मुझे पहले बोर्ड लेवल तो पढ़ना पड़ेगा ना भाई। मैंने वो तो सोचा ही नहीं, मेरे दिमाग से बाहर निकल गया ना। ऊपर से मैंने एक काउंसलर से बात करी थी
कि क्या करना चाहिए, दे वर लाइक कि नहीं बेटा, आप तो जेई करो, आप तो जेई करो, बिकॉज जेई में ही ज़्यादा स्कोप है, बोर्ड्स कोई नहीं देखता। तो मैंने इस सोच में जेई की कोचिंग ले ली थी ऑनलाइन में, उसी कोचिंग एकेडमी में, एंड इट्स अ वेरी नोन कोचिंग एकेडमी। उसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी भी आता है, बट एनीवेज लेट्स नॉट गेस दिस, बट यू नो come to the point. So yeah, I was really determined to crack this exam without knowing my कमियाँ। मेरे को यही नहीं पता था कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट इफ यू आर समवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर जेई, और आप आगे आने वाले ईयर्स में जेई देना चाहते हो, या आपने ड्रॉप लिया हो, वट एवर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू असेस योर सेल्फ कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो। इफ यू डोंट नो दैट वेयर यू स्टैंड, देन लाइक तुम कितना भी ट्राई कर लो, वो चीज उतनी एक्सपेक्टेड वे में नहीं आएगी, तुम्हें आउटपुट उतना नहीं मिलेगा, ठीक है। दिस आई विल टेल यू व्हाई, ठीक है। एंड यू माइट फील कि ओ ऐसा कुछ नहीं होता, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज कैपेसिटी, आईक्यू, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, इट्स फाइन। तो ट्वेल्थ में मेरा ऐसा था कि मैं ट्वेल्थ पूरा इस कोचिंग में ही मैंने निकाल दिया था। हाँ, निकाला भी कैसे था, यू माइट बी थिंकिंग मैं तो जेई कोचिंग कर रही थी, मेरा बोर्ड भी हो गए थे, मेरी जेई भी फर्स्ट ईयर है, नो। एज लाइक से ना कि ये जो वीडियो है ना, ये मतलब मेरा जो ये जर्नी है, इट इज नॉट स्ट्रेट लाइक अदर्स। बहुत कमजोर था, जस्ट बिकॉज मेरे की कोई प्रॉपर गाइडेंस एंड मेरा कोई प्रॉपर ट्यूशन नहीं था। बेसिक लेवल पे अगर तुम्हारा कुछ ठीक चीज ठीक नहीं होगी ना, तो तुम्हारा आगे फाउंडेशन ही नहीं बन पाएगा, आगे कुछ बन ही नहीं पाएगा। लाइक इमेजिन तुम एक बिल्डिंग बना रहे हो, लाइक दैट्स द वेरी common example that you can take. You are building something apartment or something, अगर तुमने उसका फाउंडेशन ही वीक बनाया है, तो वो बिल्डिंग तो अल्टीमेटली कोलैप्स हो ही जाएगा। दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई वुड टेल यू कि अगर तुम्हारे बेसिक्स नहीं है ना, जाके प्रॉपरली बोर्ड लेवल से पढ़ाई शुरू करो, लिटरली फ्रॉम बेसिक, लाइक स्टडी एज इफ यू आर स्टार्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम ऐसे सोच के पढ़ो, एंड देन तुम धीरे धीरे करते 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 एडवांस लेवल तक पहुंच जाओ, वो काफ़ी है। तो ये चीज़ मैंने नहीं करी, एंड ये बहुत बड़ा मेरा ग्रेव मिस्टेक था। एंड या मैंने उसकी गलती भुगती थी उसी साल। वो टीचर भी मुझसे एकदम, शी इज़ लाइक पिस्ड ऑफ, एंड द टीचर यूज्ड टू इतना सुनाती थी मुझे, इतना टॉन्ट मारती थी, इतना आई कांट टेल यू, ठीक है। दैट्स आई थिंक अगर मुझे कभी मन करेगा तो मैं एक स्टोरी टाइम बनाऊंगी, बट या दैट्स नॉट रेलेवेंट हियर, ठीक है। बिकॉज वो टीचर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था मेरे जेई उसमें। वो टीचर तो मेरे सिर्फ मेरी स्कूल में थी, एंड नाम टीचर को पता था कि मैं जेई के लिए पढ़ाई कर रही हूँ। तो उस दिन मुझे याद है एक पीटीएम हुआ था, जिसमें मेरी जो ये टीचर है, इसने मेरे पेरेंट्स को इतना सुनाया था कि तुम्हारी बेटी पढ़ती नहीं है, ये नहीं करती, वो नहीं करती, शी इज सो नालायक, शी इज दिस, शी इज दैट, एवरी सिंगल थिंग दैट लाइक इज पॉसिबल, हर किसी को बताया जाता है कि जब वो पढ़ते नहीं, या फिर जो वो नंबर कम लेके आते हैं। तो मैं नंबर बहुत कम लेके आई थी, बहुत कम, मतलब मेरे 35 में से कुछ 10 नंबर आए थे, ठीक है। एंड आई, मतलब मैं कैसे बताऊँ, लाइक या मैंने नहीं पढ़ाई करी थी तो मेरे इतने नंबर आ गए थे। सो मैथ्स में मेरे ठीक आ गए थे, मैथ्स में आई वाज लाइक रियली, आई मीन मैं नहीं भी पढ़ाई करती थी तो मेरे मैथ्स में डिसेंट आ जाते थे। आई स्कोर्ड 40 में से कुछ 30 32 ऐसे कुछ आए थे मेरे, और मैं उससे खुश थी, ठीक है। तो या ऐसे करते 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 फास्ट फॉरवर्ड, एक दिन पता नहीं मेरे मन में, मैंने एक यूट्यूब में एक, जैसे तुम मेरी जेई की स्टोरी टाइम देख रहे हो ना, वैसे मैंने भी एक जेई की स्टोरी टाइम देखी थी, एक आईआईटीएन की, ठीक है। आईआईटीएन की मैंने एक जेई स्टोरी टाइम देखी थी, जिसमें he says that he prepared for this much months. Now I'm not gonna tell you the details because I don't want you guys to go and search कि हाँ ये कौन सा यूट्यूबर है, कोई तो यूट्यूबर है, ठीक है। This much he studied for this much, and then he scored this much all India rank, which is like very impressive, and I was like wow, that's really nice. So ऐसे उसने इतनी अच्छी रैंक लेके आई थी, एंड लाइक शी स्टार्टेड, शी और ही आई थिंक, Wow. ही आई थिंक सो या ही स्टार्टेड मेकिंग यूट्यूब वीडियोस सेइंग दैट कि तुम इतने महीने पढ़ लो एंड तुम्हारे इतने नंबर आ जाएगा। टेक्निकली देखा जाए तो मेरे पास जनवरी अटेम्प्ट के लिए, जनवरी 2023 के लिए सिर्फ 4 महीने बचे हुए थे, ठीक है। एंड अब वो वीडियो भी
कुछ 3-4 महीने से रिलेटेड ही था। तो आई वाज लाइक वाओ क्या टाइमिंग है। तो मैंने इस टाइमिंग से रिलेटेड मैंने अपना ये जो लाइक एस्पिरेशन था, मेरे जो ड्रीम्स थे वो फिर से जाग गए एंड वो और भी एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गए। पहले तो मैंने आईआईटी का सोचा भी नहीं था एंड ना मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी फोर्स किया हो या मेरे मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी बताया हो एक्सपेक्टेड हो कि हाँ तू आईआईटी कर। नो, बिकॉज माई पेरेंट्स ऑल्सो न्यू कि मैं पढ़ाई में इतना ही हूँ। सो दे ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी कि ड्रीम इतना ड्रीम करो कि हाँ तुम अचीव कर पाओ। But they wanted me to study really well, ठीक है, boards and everything. They wanted me to get a good degree, काफी प्रोफेशनल डिग्री लाइक इंजीनियरिंग वगैरह। बट उनको आईआईटी कुछ करके मेरे को नहीं था। बट मेरे अंदर ये विश्वास, मेरे अंदर खुद से आया था ये। एंड देन मैंने अपने पेरेंट्स को बताया था कि मुझे आईआईटी करनी है एंड दे वर लाइक, आई मीन तू देख के कर ले, लाइक तू एकदम से ऐसे आईआईटी का मत सोच। यू जस्ट फर्स्ट पास योर बोर्ड एग्जाम एंड देन यू जस्ट गिव जेई एंड उसमें देख, एकदम से ऐसे मत हो तक। एंड हैविंग सेड दैट मेरी एकेडमिक अचीवमेंट अभी तक की बहुत बढ़िया थी। जैसे कि मैं आईआईटी में ऐसे खुद की गई कि मैं आईआईटी तो एकदम करने ही वाली हूँ, मैं तो रैंक लेके आऊंगी, मैं तो ऐसे ब्रांच से क्या करूंगी। मैं तो रोज ऐसे सुबह उठ के मैं आईआईटीज में रैंक्स चेक करती थी कि कौन से रैंक पे कौन सा ब्रांच मिल रहा है एंड एवरीथिंग। आई यूज्ड टू चेक बॉम्बे में क्या मिल रहा है, दिल्ली में क्या मिल रहा है। उसी साल मैं आई थिंक बॉम्बे भी गई थी, मुंबई गई थी एंड वहां पर लाइक एयरपोर्ट टू माई लाइक होटल आई सॉ लाइक आईआईटी बॉम्बे का वो जो आईआईटी बॉम्बे था उसके बीच में लाइक लाइक इट्स अराउंड व्हाट लाइक उसी रास्ते में था आईआईटी बॉम्बे एंड आई सॉ दैट गेट, आईआईटी बॉम्बे का गेट बाहर से, एंड आई वाज लाइक वाओ दिस इज लिटरली लाइक ड्रीम एंड आई स्टिल, भाई वो अलग ही है। इट्स लाइक, I mean, it's different feeling when you see IIT from outside, right? और अंदर से तो अलग ही फीलिंग है। मैंने बाहर से वो गेट को देखा आईआईटी बॉम्बे एंड आई वाज लाइक वाओ भाई दिस इज वेयर आई वांट टू गो। तो वहां से मैंने सोचा कि मेरे को आईआईटी बॉम्बे जाना है, ठीक है, मेरे को आईआईटी बॉम्बे ही जाना है एंड इसके आगे मैं कुछ सोचने नहीं वाली, इसके आगे मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बोर्ड गए भाड़ में, मेंस गया भाड़ में, मेरे को सीधा एडवांस देना है। क्या देना है? एडवांस। just wait for the climax, ठीक है। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू दिसंबर, तो ऐसे ही एकदम पता नहीं बैठे बैठे कहीं पे ऐसे बोलते ना जैसे बैठे बैठे बम गिर जाता है, तो वैसे ही एनटीए ने हम पे बम गिरा दिया था कि ऐसे ऐसे एक दो लाइक डेट्स आ गए। इफ यू आस्क एनी एस्पिरेंट जो 2023 जिसने दिया हो मीन्स का, उसका एक ही, उसके जर्नी में हमेशा ये एक वो एक फ्रेज होता है कि हाँ एनटीए ने बम गिरा दिया। तो मेरा भी यही है कि हाँ वो बम ही गिराया उसने, बम गिरा दिया कि जनवरी में होने वाला है, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन था अप्रैल में होगा। तो मैं भी ऐसे बैठी हुई थी बस लाइक कि चल मेंस तो अप्रैल में हो जाएगा, उसके बीच में हम लोग आईआईटी की तैयारी करेंगे 2-3 महीने, ठीक है। तो बट नहीं हमारे हिसाब से नहीं होता, यू नो व्हाट। सो मीन्स हुआ एंड फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था मैंने जनवरी में। उस टाइम पे मेरे साथ बहुत कुछ हो रहा था, लाइक इट वाज वेरी ट्रॉमेटाइजिंग। मैं स्कूल में भी बहुत, मैं प्री बोर्ड 4 बार लिख के आई थी, ठीक है, मेरा एक प्री बोर्ड क्लियर नहीं हुआ था, 2 प्री बोर्ड क्लियर नहीं हुए थे, मैं 4 बार उसको री अटेम्प्ट करके आई थी, एक भी क्लियर नहीं हो रहा था, फाइनली जाके क्लियर हुआ था मेरा। मतलब पूरी, लाइक मैं क्या बताऊँ, लाइक टीचर्स ने तो मेरे को एकदम ऐसे डिमोटिवेट करके रखा था कि मेरे को ऐसे स्कूल से बाहर निकाल देंगे। इस लेवल तक मेरा मेरा वो आ गया था, इस लेवल तक कि मेरे को स्कूल से बाहर निकाल ही देंगे, ठीक है। आई टोल्ड यू ना इट्स वेरी ट्रॉमेटाइजिंग। बट इस चक्कर में मैंने मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था जनवरी 2023 में एंड मुझे अभी भी डेट याद है, इट वाज अराउंड 5th of January, यस। तो मैंने कुछ तो फूक के पेपर दिया था, मतलब मेरे को कोई सीरियसनेस नहीं थी, कुछ भी नहीं था। आई वाज लाइक कि भाड़ में जाने दे, अप्रैल में देंगे हम, मेरा तो मेन फोकस तो एडवांस ही है भाई, ठीक है। मतलब जज कर लो भाई, मैं भी जज करने वाली हूँ अपने आप को। बट हाँ लाइक मेंस में मैंने कुछ भी ऐसे एकदम तुक्के मार के आई थी लेजिट। एमसीक्यू पे एमसीक्यू, सारे एमसीक्यू अटेम्प्ट कर दिए मैंने। आई अटेम्प्टेड ऑल द एमसीक्यूज देयर एंड सारे तुक्के, ऐसा भी कुछ नहीं है कि मैं पढ़ के दे रही हूँ। एंड आई डिड नॉट इवन नो हाउ टू अटेम्प्ट दैट डायमेंशन वाले क्वेश्चन ऑल्सो, यू कैन अंडरस्टैंड ना मेरा बेसिक कैसा था, ठीक है। मैंने ऐसे दिया एंड अगले दिन अगले महीने बोर्ड्स आ गए, तो बोर्ड्स भी मेरे को लगा कि मैंने बहुत अच्छा दिया है, 90+ आएंगे,
इतनी उम्मीद रखी थी। अब आता है अप्रैल अटेम्प्ट। तो अप्रैल अटेम्प्ट इस दौरान मैंने कोई कोचिंग वोचिंग कुछ नहीं ली थी, क्रैश कोर्स वगैरह कुछ भी नहीं लिया था। आई वाज प्योरली स्टडिंग फ्रॉम यूट्यूब। नाउ TMI, uh, if you're someone who is very clear in your goals and your basics are also clear, you're very consistent, you are disciplined, you know कि तुम्हें IIT ही जाना है, you know तुम्हारे means clear हो चुका है, प्लीज तभी YouTube चूज करना, वरना मत चूज करना। प्लीज, दैट्स माई एडवाइस। एंड आई डोंट, मतलब मैं तुम्हें ये नहीं बोलती कि तुम मेरी एडवाइस मानो, यूट्यूब मत देखो, बट फैक्ट इज दैट वट एवर यू सी इन यूट्यूब ना, इट इज जो जेई से रिलेटेड ये जो बनाते हैं ना कि ओ 4 महीने में जेई निकल जाएगा, आई 4 महीने तो कुछ भी नहीं है। आई इवन सॉ ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन, आई इवन सॉ 1 मंथ में 99% आए। आई बेट कि अभी भी ऐसे वीडियोस बनते हैं, ठीक है, बट एक महीने में जेई मेंस में 99% आए, तब मेरे लिए तो बहुत ऐसे फैसिनेटिंग होता था, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू अट्रैक्ट नए मुर्गे, राइट? ठीक है, सबको बलि का बकरा बनाने के लिए तो अट्रैक्ट करनी पड़ती है ना, तो वो उस चीज को तुम कैसे अट्रैक्ट करोगे? बाय यूजिंग जॉसी थिंग्स, बाय टेलिंग फैंसी थिंग्स कि हाँ तुम्हारे 1 महीने क्या 20 दिन में तुम्हारा जेई क्लियर हो जाएगा और 99% तो यू आ जाएगा। तो मैं भी इन चीज़ों में फंस गई थी। दिस इज बेसिकली अ छल, ठीक है, इट्स लाइक अ ट्रैप। मैं इन ट्रैप पे फंस गई थी एंड मैं, लेकिन मैं पूरा फिदा हो गई थी। मैं पूरे दिन बैठ के यही वीडियोस देखती थी कि जेई मेंस कैसे निकाला जाए, रादर देन स्टडिंग। ठीक है, आई डिड नॉट स्टडी। स्टडी के नाम पे मैं सिर्फ PYQs देखती थी, एंड वो भी आई थिंक मैं एक दो चैनल देखती थी जहाँ पर वो लोग सॉल्व करवाते थे। अब मैं चैनल का नाम बताने लग जाऊंगी तो आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसे खुद भी नहीं याद, बट मैं फिजिक्स के लिए एक चैनल यूज करती थी। एंड या आई इवन स्टडीड फ्रॉम साक्षी वोरा मैम, एंड आई विल टेल यू शी इज द बेस्ट टीचर आई एवर हैड। लाइक आई मीन हैड तो मैं ऐसे बोल रही जैसे मैंने उनसे ऑफलाइन पढ़ा, नो, मैंने उनसे पूरा ऑनलाइन ही पढ़ा था, मैंने पूरा यूट्यूब से ही पढ़ा था उनसे। एंड उन्होंने उस टाइम पे आई थिंक अपना वोरा क्लासेस शुरू किया था चैनल, जो कि अभी आई थिंक एक प्रॉपर ऑफलाइन कोचिंग सेंटर हो चुका है। एंड हैप्पी यूजर में देख रही थी मेरे फीड पे वो वोरा क्लासेस के वो एक शॉट आए थे जिसमें मैम बता रही थी, एंड आई वाज लाइक वाओ, मैम ने अपना कोचिंग सेंटर इतना एक्सपैंड कर दिया है। आई मीन आई एम लाइक वेरी नाइस। आई मीन शी इज एन अमेजिंग टीचर। एंड इवन निशांत सर, लाइक मुझे मैथ्स पढ़ाते थे, इट नेवर यूज्ड टू फील कि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, इट वाज लाइक कि हम कुछ जनरली पढ़ रहे हैं, लाइक इट वाज वेरी नाइस, लाइक। एंड साक्षी मैम यूज्ड टू मेक द कॉन्सेप्ट्स रियली क्लियर। सो इफ यू आर समवन जो कि बेसिक्स नहीं आते तुम्हें केमिस्ट्री के, तो आई वुड एडवाइज कि तुम साक्षी मैम के वो बाउंस बैक के सीरीज देखो, जो कि बहुत पुराने हैं, बट मैंने बहुत देखे थे, 9-9 घंटे के बाउंस बैक मैंने बैठ के देखे थे। एंड ट्रस्ट मी, वो तुम्हारा एक हद तक तुम्हें एक लेवल पे लेके आ जाता कि हाँ तुम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हो। तो या साक्षी मैम एंड निशांत सर के मैं बहुत सारे वीडियोस देखती थी एंड सॉल्विंग के देखती थी, एंड दे यूज्ड टू आल्सो पैरेलली वो लोग क्वेश्चंस डालते थे एंड मैं उनका भी देखती थी। एंड ऐसे ऐसे करते करते मैंने अपना अप्रैल का अटेम्प्ट देने गई थी। आई वाज लिटिल बिट नर्वस बिकॉज मुझे लगा कि मैं एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाऊं, एंड या ऐसे हो जाए। तो मैं अप्रैल अटेम्प्ट देने गई थी, एंड आई रिमेंबर द डेट, इट वाज 13 अप्रैल 2023, शिफ्ट 1। एंड सेंटर पे कोई एसी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं बैठी हूँ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता एसी एंड सबसे, ठीक है, मुझे फर्क पड़ता है कि मैं इस एग्जाम को क्लियर करके आऊँ। मैंने सबसे पहला, लाइक, एग्जाम स्टार्ट हुआ, फ्लैश 1, लाइक पहला क्वेश्चन जो फ्लैश हुआ था मेरे स्क्रीन पे, मेरा मुंह ऐसे घुला का घुला रह गया ऐसे। आई वाज लाइक व्हाट, ये कौन सा चैप्टर है? फिर मेरे को लगा कि चल ठीक है और देखते, दिस इज द मैथ सेक्शन, लेट मी गो टू द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सेक्शन। भाई फिजिक्स केमिस्ट्री भी अलग ही लेवल ऐसे सर के ऊपर से गया, मुझे लगा कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाई करी। तो मैंने, मेरे रोना निकल गया, बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट टाइम इतना सीरियसली एग्जाम दे रही हूँ, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एंड गेस व्हाट, मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं आता। मैंने कैसे तैसे करके मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व किया था, 3 या 4 किया था, मैथ्स का थोड़ा सॉल्वेबल था, बट मैथ्स का मेरे शिफ्ट में टफेस्ट आया था। पर मैंने कैसे करके सॉल्व कर लिया था, मैथ्स का थोड़ा आंसर के पास ही थी मैं, तो मैंने कुछ तुक्के तो नहीं कह सकती, बट हाँ मैंने मैथ्स का सॉल्व किया था 3 या 4 क्वेश्चन।
फिजिक्स के 9-10 भी नहीं किए थे मैंने, एंड केमिस्ट्री में भी उतने ही किए थे। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरा क्लियर होगा। मैं घर आके बहुत रोई थी। मेरा उम्मीद, मेरी आशा आईआईटी जाने की वहीं टूट गई थी। और मुझे लगा कि मैं इस उम्मीद के साथ और नहीं रह सकती। आई वाज वेरी 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 शैटर्ड। माय पेरेंट्स इवन यूज्ड टू टेल मी कि तू इतना क्यों हाई होप्स रखा था तुमने, तुम इस चक्कर में बाकी एग्जाम्स भी तुमने ढंग से नहीं किया था, तो उस चक्कर में, मेंस के चक्कर में भी मैंने बोर्ड्स पढ़ाई नहीं करी थी, बट आई थॉट कि मैं अच्छा लिख के आई हूँ। ठीक है। अब फास्ट फॉरवर्ड टू 1 मंथ आफ्टर 13th मई, लाइक 13th मई 2023 को आई थिंक हमारा बोर्ड के रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे। And मुझे लगा कि यार मेरे बोर्ड में 85 तो बन ही जाएंगे, मेरे आए 70%। भाई उस दिन आई फेल्ट एज अ दुनिया खत्म। मेरे लिए मैं खत्म हूँ, मेरी फील्डिंग सेट है। क्योंकि भाई तेरा मेंस नहीं निकला, एंड हाँ उससे पहले, मई से पहले, बोर्ड्स के रिजल्ट के पहले मेरा जेई का रिजल्ट आ गया, एंड उसमें मेरे परसेंटाइल अराउंड लाइक बहुत खराब थी। ऑफ कोर्स बहुत दूर था कट ऑफ से, तो मेरा तो हो नहीं पाया। एंड Wow. फॉर मी लाइक मेरा जनरल कैटेगरी कहीं पर भी मुझे उस परसेंटाइल में नहीं मिलने वाली थी एक्सेप्ट फॉर प्राइवेट कॉलेजेस। तो मेरे पास प्राइवेट का भी ऑप्शन था, बिकॉज माय क्लासमेट्स वर आल्सो एमिंग फॉर फ्यू प्राइवेट कॉलेजेस, एंड मेरे पेरेंट्स ने भी कहा था कि तू प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले ले, बिकॉज लाइक जस्ट टेक इट। बट मेरे अंदर ना ये एक आया था कि यार मेरा बोर्ड भी अच्छा नहीं गया, मेरा मेंस भी अच्छा नहीं गया, मेरा किसी में भी अच्छा नहीं आया। मैं किसी में भी नहीं अच्छा आया, मैं एवरेज हूँ भाई। मेरी कॉन्सेप्ट्स ही नहीं क्लियर है, मैं कैसे कर पाऊंगी ये सब। मेरे पेरेंट्स ने भी बैक टू बैक मुझे यही बताया था कि देख ले, तूने जेई का लेवल देख लिया तो तू अब आगे क्या करेगी ये तेरे पे डिपेंड करता है। आई वुड वी वुड एडवाइस यू कि तू अपने मर्जी जो भी तुझे लगा हो ये मत करियो। थोड़ा फैक्ट्स में आ, थोड़ा प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आ कि तुझे क्या करना है एग्जैक्टली। जेई का लेवल तो तूने देख ही लिया, आगे बीटेक कैसे होगा, बीटेक तो इससे टफ होगा। तो ये सब चीज़ें बोल के मैं खुद भी डाउट में आ गई थी, एंड मुझे खुद भी एक अंदर से एक ऐसी थी कि यार मैं शर्मिंदा हूँ। बिकॉज मेरे आसपास जितने भी बच्चे थे, लाइक मेरी जूनियर, मेरी जो मेरे से 1 साल छोटी थी, 2 साल छोटी थी, उनके भी बोर्ड में 90% आ गए थे आराम से, बट मेरे नहीं आए थे। मुझे लगा भाई मेरे ना 10th में आए थे ना 12th में आए थे, मैं क्या कर रही हूँ यार अपनी लाइफ में। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं पूरे टाइम पढ़ती रहती हूँ बट मेरे नंबर ही नहीं आते। इतना फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, इतना फ्रस्ट्रेशन कि मैं नहीं कर पा रही थी। तो आई यूज्ड टू क्राई अ लॉट। एंड उस दिन तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डेवास्टेटिंग था, बिकॉज मैं इतने सारी चीज़ें सोच रही थी। मेरे को याद है कि मैं जिस दिन बोर्ड का रिजल्ट आया था, मैं 1 बजे तक अपने कमरे में बैठ के रो रही थी, लाइट बंद करके, फैन बंद करके मैं रो रही थी। स्टिल रिमेम्बर दैट डे, ठीक है, आई कांट फॉरगेट। ठीक है, मैं रो रही थी बैठ के कि यार मेरा कुछ नहीं होने वाला मेरा लाइफ में। I'm just I'm done with this. ठीक है। But then that ray of hope comes. For me, that ray of hope was that thought कि why not just give it one more try. I mean मेरा 12th भी हो गया, मेरा वो भी हो गया, अब ट्राई किस पे? ट्राई मतलब जनवरी 2024 के अटेम्प्ट। तो मेरे मन में ये भी आया था कि नो, आई विल नाउ डिसाइड कि मुझे क्या करना है। आई वुड go and join a offline coaching center. Yes, मैं एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करूंगी, प्रॉपर कोचिंग, नॉट ऑनलाइन। क्योंकि मेरा ऑनलाइन में इतना गुस्सा आ रहा था ना, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं नहीं करने वाली। मैं सिर्फ ऑफलाइन ही करूंगी, एंड प्रॉपरली करूंगी, बेसिक से स्क्रैच से एडवांस तक मैं प्रॉपरली पढ़ूंगी। मैं ऐसे जाऊंगी जैसे मैं 11th क्लास की बच्ची हूँ। तो आई जॉइंट वो एज डिसाइडेड, मैं चली गई थी। मैं और मेरे पेरेंट्स वहाँ गए थे, एंड सब कुछ इंक्वायरी वगैरह करके आए थे कि क्या क्या बैचेस है, तो मुझे ड्रॉपर बैच में डाल दिया। तो एज डिसाइडेड आई फाइनली टुक अ ड्रॉप, एंड या इट वाज यू नो little bit brainstorming for me, but at the same time it was very exciting also कि यार completely now I'm gonna start everything from the beginning. Actually आसान नहीं है to very few people get this chance to सब कुछ पहले से रीसेट करके स्टार्ट करना। बट हाँ मैंने सोचा था क्योंकि यार देख मेरी अच्छाई के लिए,
थिंक दैट मैंने इस हालत में कॉलेज ज्वाइन कर लिया, एंड व्हाट इफ मैं फर्स्ट सेमेस्टर में ही फेल हो जाऊं सारे सब्जेक्ट्स में, तो वो मेरे लिए और डिप्रेशन हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं ऐसे एक टैग के साथ बनी रहूं कि हाँ तू तो फेल होती रहती है एंड एवरीथिंग। आई डोंट वांट दैट टैग, ठीक है। तब मेरा ये मतलब तब उस टाइम पे मेरा ये माइंडसेट था, ठीक है। उस टाइम पे लाइक थिंक ऑफ एन माइंडसेट, लाइक थिंक ऑफ द माइंडसेट ऑफ अ ड्रॉपर, ठीक है। एक ड्रॉपर बच्ची, लाइक लिटरली एक 17 साल की बच्चे का, 17 साल का बच्चे का जो माइंडसेट होता है ना, उस हिसाब से मैंने ये सोचा था कि मैं ड्रॉप ही लूंगी एंड मैं आगे कॉलेज अभी 1 साल के बाद ही ज्वाइन करूंगी। तो मैंने सबसे फेमस कोचिंग जो है कोटा में भी, एंड यू ऑलरेडी नो, सो मैंने वो कोचिंग ज्वाइन किया। तो मैं आगे बताऊंगी कौन सा कोचिंग। तो मैंने कोचिंग ज्वाइन किया एंड लाइक जून में स्टार्ट होने वाले थे बैचेस, तो जून में स्टार्ट हो गए थे। तो मैं मेरा पहला, मुझे याद है मैं पहला दिन गई थी 10 जून 2023, ठीक है। 10 जून 2023 में गई थी एंड फर्स्ट डे आई मेट लॉट ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, बट मैं बहुत नर्वस भी थी कि यार मुझसे कैसे होगा, कौन से कैसा लेवल होगा, क्योंकि मैं अल्टीमेटली ड्रॉपर हूँ जिसकी परसेंटाइल भी बहुत कम आई थी, एंड अब मैं कैसे कोप अप करने वाली हूँ। तो मेरे लिए ये सब चीज़ें दिमाग में बहुत था, बट आई न्यू चल यहाँ पर बेसिक से पढ़ा देंगे, क्योंकि हमें हमारा बैच जो था उसमें बताया गया था कि सब कुछ हम बेसिक से ही पढ़ाएंगे। एंड या टीचर से जितना हो सके तुम डाउट्स पूछो ना। माई थिंग वॉज, मेरा डिसएडवांटेज ये था कि मैं स्कूल में रहते रहते किसी टीचर से डाउट नहीं पूछती थी। मैं अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ तो मैं टीचर से डाउट ही नहीं पूछती थी। आई वाज लाइक कि छोड़ो भाई, भाड़ में जाए, हम कर लेंगे। तो इतनी कॉन्फिडेंस थी, और ये कॉन्फिडेंस मुझे लेड हो गया था। तो मैं ये चीज़ को मैंने अडेप्ट करना शुरू किया। अब जो भी क्लासेस होते थे आगे, तो मैं हर टीचर के पास जाके मैं पहले क्वेश्चंस के डाउट पूछती थी कि सर मुझे ये बताओ कि ये कैसे हुआ। सो एज यूजुअल फिजिक्स में वो स्टार्ट हुआ था यूनिट्स एंड डायमेंशंस, एंड हमें कोचिंग के मॉड्यूल वगैरह दे रही थी, भर भर के सॉल्व करती थी मैं, भर भर के पूरे दिन बैठ के मैं सिर्फ मॉड्यूल ही बैठ के सॉल्व करती थी। आई वाज सो पैशनेट टू सॉल्व दी क्वेश्चंस। मैं इतना पैशनेटली सॉल्व करती थी, फिजिक्स के सब कुछ सॉल्व करती थी मॉड्यूल। सो उनके मॉड्यूल्स, मेरी जो कोचिंग की मॉड्यूल्स दी बेस्ट थे, ठीक है। नाउ द कोचिंग विच आई जॉइंड वाज एलन, and if you're from Allen then comment. So yeah, like मैं Allen में थी, and Allen के modules you already know that they are very nice. Like I still, अगर मुझे किसी को recommend करना हो कि किसके modules अच्छे हैं तो मैं Allen बोलूँगी। And solely because मेरे लिए तो एलन ही बेस्ट था, क्योंकि मैंने बाकी कोचिंग के नहीं देखे थे, बट मुझे एलन का पता था कि एलन में स्ट्रक्चर होता था। यू विल गेट द थियोरी एंड देन यू विल गेट द सम बिगिनर बॉक्सेस वगैरह, एंड देन एक्सरसाइजेस होते थे 4-5। तो मैं उसमें बिगिनर बॉक्स सॉल्व करती थी, एंड देन लाइक वो एक पूरा एक रूटीन बन गया था। तो मेरा जो कोचिंग का टाइम होता था यूजुअली वो सुबह के 8 बजे से लेकर 2 बजे होता था, जस्ट लाइक नॉर्मल स्कूल टाइम। तो मेरे लिए वो स्कूल की तरह ही हो गया था, थोड़ा सा ब्लेंड ऑफ कॉलेज, बिकॉज या यू हैड अ यूनिफॉर्म, बिकॉज एलन की टी शर्ट पहन के जाते थे। सो स्टाइल वाइल का तो ऑप्शन ही नहीं था, और कभी दिमाग में आया भी नहीं था कि हमें फैशन करने जाना है। हमें, मेरे तो बस ये था कि मेरा कैसे भी करके जेई में परसेंटाइल आ जाए, मेरे को एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। ये सब फैशन वगैरह, ये सब चीज़ें हम कॉलेज में कर लेंगे। सो ये सब चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा से दूर रख दी थी, एंड मैंने, मेरे को टचवुड मेरे को फ्रेंड्स भी ऐसे मिले थे कोचिंग में। लाइक वी वर अराउंड 4 to 5 गर्ल्स ग्रुप, ठीक है। एंड उसमें सारे गर्ल्स सिर्फ पढ़ाई करते थे। दैट एटमॉस्फेयर यू कैन थिंक कि एटमॉस्फेयर कितना अच्छा था। तुम्हें कोई डाउट आता था, तुम उस लड़की से पूछोगे जिसके तुमसे ज्यादा मार्क्स आते हैं। मैं उस लड़की से पूछती थी कि यार तूने कैसे किया, एंड शी यूज्ड टू एक्सप्लेन। तो हम लोग एक दूसरे को एक्सप्लेन करते रहते थे। ऑल्दो मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करती थी, बिकॉज मैं उतना कर नहीं पाती थी, बिकॉज मैं इतना डीपली नहीं सोचती थी। डीपली मैं तब इतना नहीं सोचती, मुझे कभी आदत नहीं थी। आई नेवर यूज टू अंडरस्टैंड एनी कॉन्सेप्ट डीपली, एंड दैट इज द मिस्टेक। सो दैट आई स्टार्टेड टू अडेप्ट कि मैं एक एक कॉन्सेप्ट, मान लो मैकेनिक्स से फ्रिक्शन पढ़ रहे हो, यू डोंट इवन नो व्हाट इज एन, एफ इज इक्वल्स टू म्यू एन होता है एक फॉर्मूला, यू डोंट इवन नो व्हाट इज एन, यू डोंट इवन नो व्हाट इज द टाइप ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक क्या होता है, काइनेटिक क्या होता है, किस में क्या फॉर्मूला लगता है, तुम्हें कंपोनेंट्स नहीं पता तो तुम कैसे फ्रिक्शन पढ़ोगे एंड कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। तो ये चीज मैंने धीरे धीरे थोड़ा सा रहना सीखा, एंड ट्रस्ट मी इट वाज नॉट इजी, इट लिटरली टुक मी अराउंड 2 months, not properly even 2 months, ठीक है। इट एक्चुअली नॉट इवन टुक मी
2 months. It took me around the year. पूरा साल निकल गया था एंड देन मुझे बाद में रियलाइज हुआ था. Now fast forward to July. तो मैं मेरा ऐसा सीन होता था that I used to solve 100 क्वेश्चंस पर डे. ठीक है. मेरे जो सर थे केमिस्ट्री के सर, एलन, ही वाज अमेजिंग. ठीक है. नॉट प्रमोटिंग एलन. इफ समवन इज टेलिंग कि मैं प्रमोट कर रही हूँ, भाई मैं नहीं कर रही. इट्स लाइक प्योरली माय एक्सपीरियंस एंड आई विल लाइक दिस इज. बहुत लोग बुराई करते हैं इस चीज की, बहुत लोग तारीफ करते हैं. अंडरस्टैंड की बैचेस टू बैचेस एंड ब्रांचेस टू ब्रांचेस डिपेंड करता है, बट फॉर मी एलन वाज लाइफ चेंजिंग. ठीक है. इट वाज लाइक समथिंग जो जिसने मुझे बहुत सिखाया था, पढ़ाई वाइज एंड वैसे भी. तो हमारे सर एक्सट्रीमली मोटिवेट करते थे कि तुम यहाँ से शुरू करोगे तो तुम्हारा ऐसे हो जाएगा, इतने क्वेश्चन सॉल्व करो. सो माई सर यूज टू टेल अस कि हर सब्जेक्ट में यू नीड टू सॉल्व 30 क्वेश्चन पर डे. सो इफ यू आर हैविंग 3 सब्जेक्ट्स एंड यू हैव टू सॉल्व 90 क्वेश्चन पर डे, एंड 90 के साथ तो तुम 10 और एक्स्ट्रा कर लो. तो ये चीज मेरे दिमाग में बैठ गई थी एंड आई स्टार्टेड टू सॉल्व लाइक मेनियक. ठीक है. मैं पागलों की तरह बैठ के सॉल्व करती थी. कुछ भी क्वेश्चन दिख जाता था मैं सॉल्व कर लेती. मैं ऐसे लाइक एक एक क्वेश्चन में सॉल्व करती थी, टिक मारती थी, और मुझे किस क्वेश्चन में डाउट था मैं ऐसे कांटे मार देती थी. एंड देन आई यूज टू नेक्स्ट डे कोचिंग में जाके मैं सर से पूछती थी कि हाँ अब सर ऐसे ऐसे बताओ. एंड हर दिन पूछती थी, हर सब्जेक्ट में पूछती थी. ऐसा एक दिन भी नहीं रहा होगा जिसमें मैंने नहीं पूछा हो. एंड पीपल वर बी लाइक वाओ, ये कितनी पढ़ाकू है. मैं ऐसे ही थी स्कूल में भी, एंड ये इनको भी मैंने बेवकूफ बना दिया था. कैसे आगे बताऊंगी. मतलब बेवकूफ मैंने इंटेंशनली नहीं बनाया था, बट क्या करें, जो तुम्हारा दिमाग है वो है. सो जुलाई आ गया एंड जुलाई में भी मैंने बहुत क्वेश्चन सॉल्व करे थे. एंड देन आई थिंक हमारे जो टेस्ट आने वाले थे, माइनर टेस्ट होते हैं, आई थिंक मेजर बोलते हैं माइनर बोलते हैं, पता नहीं, माइनर टेस्ट आने वाले थे. एंड हर महीने होते हैं, सैटरडे को होता है. तो हम लोग माइनर टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा ऐसे एकदम नर्वस थे, और मैं भी थी. uh, जो चैप्टर्स थे इट वाज लाइक वेरी प्रीटी सिंपल. इट वाज यूनिट्स एंड डायमेंशंस, एंड केमिस्ट्री में भी शुरुआत के कुछ चैप्टर थे एंड मैथ्स में भी शुरुआत के चैप्टर थे 11th के. तो मैंने उस दिन पेपर दिया एंड मैं इतना पढ़ के गई थी, यू वोंट बिलीव कि मैं इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. मैंने पूरा मॉड्यूल खत्म कर दिया. एंड आपको लग रहा होगा कि मैं मेंस में टॉप कर गई होंगी, मतलब टेस्ट में. वेट फॉर द क्लाइमैक्स, इतना ही बोलूंगी. तो उस दिन मैं टेस्ट देने गई थी एंड मुझे होप थी कि मैं कुछ तो करके आऊंगी. ठीक है. वो था कि मैं 300 मार्क्स में से, मेरे सर ने कहा था कि एटलीस्ट एम फॉर 200. ठीक है. 200 आउट ऑफ 300, द वे यू आर स्टडिंग. क्योंकि सर ने मुझसे बोला था कि द वे यू आर स्टडिंग, द वे यू आर आस्किंग डाउट्स, आई फील कि तेरे 200 नंबर आ जाएंगे. आई मीन kudos sir, like the way you were motivating me and everything. I really appreciate that. ठीक है. सर ने मुझे इतने हाई होप्स दे दिए थे, बट मुझे पता था कि मेरे 200 नहीं आने वाले. ठीक है. इतना एक इंस्टिंक्ट तो होता है, गट फीलिंग होती है ना, इतना इंस्टिंक्ट आ ही जाते कि तुम्हारे 200 नंबर नहीं आने वाले. सो आई वाज लाइक ब्रो, शांत, मैं जैसे करूंगी मैं वैसे ही करूंगी. मुझे लगा कि चल 200 छोड़, 150 आ जाएंगे, 150 के लिए करते हैं. नाउ एज सुन एज आई ओपन द पेपर. ठीक है. ऑफलाइन होता था, सीबीटी नहीं होता था. मेरा दिमाग ब्लैंक. आई कंप्लीटली गेट ब्लैंक. फर्स्ट क्वेश्चन वाज फ्रॉम फास्ट फॉरवर्ड टू अगस्त. सो मैंने उसके बाद मैंने सोचा था कि यार मैं कॉलेज ही ज्वाइन कर लेती हूँ. तो मेरे पेरेंट्स ने कॉलेज का फॉर्म निकाला था, प्राइवेट कॉलेज, एंड मुझे आसानी से मिल रहा था. तो उस पे देखा था एडमिशन, अभी भी वो थे, बट मेरा पूरा मन उस पे नहीं था. बस वेरी मच engrossed इन दिस जेई का, एलन वगैरह. मुझे एलन छोड़ के आने का मन नहीं कर रहा था, बिकॉज ऑनेस्टली एनवायरनमेंट really बहुत अच्छा था. बट हाँ, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा. तो मेरे पेरेंट्स वर लाइक कि जब तेरे टेस्ट में ही नंबर नहीं आ रहे तो फिर फायदा क्या. लाइक तूने देख लिया, तूने बहुत पढ़ाई करी है, हमने भी देखा तूने कितनी मेहनत कर रही है, बट यू स्टिल नॉट एबल टू गेट मार्क्स. तो सी कि ये तेरे लिए बना है कि नहीं. एंड ऑनेस्टली दिस इज समथिंग दैट आई फील कि ये सबको रियलाइज कर लेनी चाहिए. तब मुझे कोई बताता था ना कि तू देख ले तो उससे हो पाएगा कि नहीं, मुझे गुस्सा आ जाता था. आई मीन हाँ, इट्स लाइक अ चैलेंजिंग थिंग, बट मेरे लिए तब बहुत गुस्सा आता था. बट अभी मैं सोच के देखती तो यार मुझे थोड़ा सा तो थोड़ा होनी चाहिए ना सेल्फ अवेयरनेस टू असेस, वरना तुम तो घरों की तरह पढ़ते रहोगे एंड तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे.
तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे थी, बट मैं अगले दिन फिर भी कोचिंग गई थी, तो मैं कोचिंग गई थी एंड सब अपने मार्क्स फ्लेक्स कर रहे थे कि हाँ मेरे 150 नंबर आए हैं, 200 नंबर आए हैं। हाईएस्ट तो मेरे क्लास में 250 थे। मैं उनको देख के ऐसे ऐसे एकदम मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था कि ब्रो, हाउ कैन यू स्कोर 250, लाइक व्हाई एंड हाउ, लाइक व्हाई वाज द क्वेश्चन इररिलेवेंट था, बट मैं सोचती कि भाई कैसे। मेरी फ्रेंड्स जितनी भी आसपास की लड़कियां, उनकी भी मुझसे ज्यादा आगे थे। वो लड़कियां जो कहती हैं मैं पढ़ती नहीं हूँ, बट आई नो डीप इनसाइड कि वो बहुत ज्यादा, like they are very intelligent because they have scored very nice marks in their board exams. So I know कि उनके थोड़े basics अच्छे हैं. Just let's accept the fact that if someone scores very nice in their board exam, for example 90 to 95, so you should assume कि that उसके basics और उसके foundation बहुत तगड़े हैं, ठीक है। ये सब नहीं बोल सकते कि हाँ बोर्ड के मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है ब्रो, सम एक्सटेंट पे नहीं करते, बट जस्ट एक्सेप्ट कि उनकी फाउंडेशन बहुत अच्छी है, ठीक है, उनकी बेसिक्स बहुत अच्छे हैं, उनका आईक्यू भी उस लेवल का है। सो मैं उनको देख के ऐसे सोचती कि भाई कैसे होता है एंड एवरीथिंग, बट आई वाज वेरी डिमोटिवेटेड, आई वाज लाइक छोड़। तो मैं सर के पास गई एंड मुझे इस दिन याद है कि मैं सर के पास क्लास खत्म होने के बाद मैं मतलब सर से डाउट पूछने गई थी एंड देन मेरे टप 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 ऐसा आंसू बनने लग गए थे। आई वाज क्लियरली क्राइंग इन फ्रंट ऑफ द सर कि सर, I just scored only 23 marks in my mains ka mock test, and like this is the end. I feel I don't have the IQ, because at that time my parents even told me that there is something known as IQ, and हो सकता है कि बेटा तेरा इस चीज के लिए IQ नहीं है या फिर कुछ है। And देखो, like it's like ठीक है, मतलब एक हद तक it is true also, बट उस टाइम पे मैं एकदम एकदम ऐसे सैड हो गई थी एंड आई वाज वेरी अपसेट। लाइक सैड इज अ वेरी स्मॉल वर्ड फॉर दिस। आई वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, आई वाज वेरी अपसेट, आई वाज वेरी डिप्रेस्ड। सो मैं सर के पास गई थी, सर के सामने मैं ऐसे रोने लगी थी कि सर मुझसे नहीं हो रहा, मैं दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले रही हूँ। एंड देन माय सर वाज लाइक कि तुम क्यों इतना डिमोटिवेटेड हो रही हो। एंड आई वाज लाइक सर मेरे सिर्फ 23 नंबर आ रहे। इफ यू थिंकिंग कि सर मेरे एक सब्जेक्ट में 23 आया, नो, मेरे ओवरऑल 23 आए हैं। एंड मैं आपको ब्रेक डाउन बता देती हूँ, मेरे फिजिक्स में एक नंबर थे। इट्स वेरी शॉकिंग, राइट, इट्स वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी ऑल्सो। इट वॉज एक नंबर आए थे मेरे 100 में से, एंड 11 नंबर आए थे केमिस्ट्री में, एंड मैथ्स में भी इतने आए थे भाई। मैं सर वाज लाइक, वो तो इतने एकदम काम वे में उन्होंने मुझे एकदम गाइड किया था। अनलाइक माई स्कूल की टीचर, जो कि अभी इस वक्त मेरे, इमेजिन अगर मेरी स्कूल की टीचर एलन में होती है, मेरे मार्क्स देखती ना, उसने कसम से मेरे को कोचिंग से निकाला होता, बिकॉज शी वाज दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको बुरे मार्क्स हजम ही नहीं होते हैं। बट ये सर इतने काम थे, इतने पोलाइट थे, लाइक मतलब आईआईटी से थे, तो उनको काफ़ी नॉलेज भी थी एंड केमिस्ट्री पढ़ाते थे। एंड ही वाज लाइक कि तेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि तू ब्लैंक आउट हो जाती है। एंड मैंने कहा था यस सर। तो तू क्या कर कि जो एक्चुअल टेस्ट होता है ना, उससे पहले तू 2 या 3 मॉक टेस्ट सॉल्व कर। एंड आई वाज लाइक कि सर आप बात तो सही कह रहे हो, बट मैं कैसे करूँ, लाइक उसके लिए अलग से मुझे पैसे लेने पड़ेंगे, एंड व्हाट इफ मैं इतने पैसे लेके मैं मॉक टेस्ट ले रही हूँ एंड देन एंड में कुछ ना हो। एंड सर वाज लाइक कि एंड में जरूर होगा, अगर तू अभी से ही अच्छा करेगी तो ये 23 आराम से तू इसको 100 नंबर तक खींच सकती है नेक्स्ट अटेम्प्ट, वो तक टेस्ट तक। तुझे करना क्या है, ही जस्ट टोल्ड मी बेसिकली ऑल द स्ट्रैटेजी। वाज लाइक कि तुझे इतने इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इतने इतने क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने जो इजी है। बेसिकली यही की इट्स लाइक गुरु मंत्र है कि तुम्हें तुम्हारे 90 क्वेश्चंस में से छांटो कि तुम्हें कौन से क्वेश्चंस इजी लगते हैं एंड तुम उसे सॉल्व करो, तो ज़्यादा स्कोर बन जाता तुम्हारा। तो ही जस्ट टोल्ड मी इन अ वेरी बेटर वे एंड आई वाज लाइक कि ओके, दिस इज ग्रेट, आई विल डू दैट। So yeah, I started to do this in all the आगे के months, and yeah, it was barely, if I tell you my drop year जो होता है ना, कभी एक साल होता ही नहीं है, कभी भी नहीं एक साल होता। अगर आपको लगता है कि एक साल होता है, नो, उसका नाम ड्रॉप ईयर है, बट लेजिट वो 6 महीने का ही होता है। फॉर मी इट वॉज फ्रॉम जनवरी, जून टू टिल जनवरी, ठीक है। या आई वाज लाइक चल जनवरी तक खुश करना है। मेरे घर वाले भी कीन थे कि जनवरी खत्म हो जाए, उसके बाद देखा जाएगा।
वेरी कीन, क्योंकि मेरे लिए अब अप्रैल अटेम्प्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। क्योंकि मेरे लिए मैंने एक सीख क्या ली, मैंने गलती क्या की, मैं जनवरी अटेम्प्ट को भूलकर मैंने अप्रैल पे ज़्यादा फोकस किया था, एंड वो भी बहुत ग्रेव मिस्टेक था। एंड आई वाज लाइक नो, आई विल नॉट अटेम्प्ट दैट मिस्टेक अगेन। तो मैंने जनवरी पे फोकस किया, एंड फॉर मी अप्रैल डिड नॉट एग्जिस्ट टिल द एंड। इफ यू आस्क मी, अप्रैल अटेम्प्ट डिड नॉट अटेम्प्ट एग्जिस्ट फॉर मी, एंड माय टीचर्स वर लाइक ऑल द सेम कि हाँ तेरे लिए अप्रैल अटेम्प्ट को देखना ही नहीं है, जनवरी को ही देखना है। बिकॉज जनवरी में क्या होता है कि कंपटीशन कम होता है, एंड तुम्हारा जो कम स्कोर में भी ज़्यादा परसेंटाइल बन जाएगा। So yeah, I was very much, dedicated. Like I can't, express that. मतलब कोई हार्ड वर्क करता है ना, तो उस चीज को जब एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बातों में नहीं बोल सकते। मैं अगर अपने आप को इमेजिन करूँ 2023 में, तो मैं इमेजिन नहीं कर सकती। मतलब अभी के और वहाँ के बहुत डिफरेंस है। तब मैं, मेरा रूटीन ही पढ़ाई होता था। मेरे पास कोई इंस्टाग्राम नहीं था, मेरे पास स्नैपचैट भी नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब में लेक्चर्स देखती थी। या आई वॉज ऑल्सो फॉन्ड ऑफ मेकअप, तो मैं मेकअप के वीडियोस देखती थी, बट एक पर्टिकुलर टाइम पे देखती थी। फॉर मी, मेरा जो रूटीन होता था कोचिंग से आने के बाद, फॉर एग्जाम्पल मैं 2:30 बजे कोचिंग से आ जाती थी, तो मैं थोड़ा 1 घंटे रेस्ट लेती थी, एंड रेस्ट का टाइम भी मैं कम करती थी कोशिश करके। 4 बजे मैं पढ़ने बैठती थी, या 3:30, 3:30 से लेकर स्ट्रेच में 10:30 तक मैं पढ़ती थी लगातार 6 घंटे, 2 hours फॉर ईच सब्जेक्ट एंड डिजायर्ड क्वेश्चंस। तो वहां से मैंने क्वेश्चंस कम करनी स्टार्ट करी थी। पहले जो मैंने क्रेज था ना कि मुझे 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, वो मैंने बंद कर दिया था। आई वाज लाइक कि नो, क्वालिटी मैटर्स ओवर क्वांटिटी, एंड दिस इज वेरी ट्रू, ठीक है। सो क्वालिटी ऑलवेज मैटर्स ओवर क्वांटिटी। सो आई वाज लाइक कि मैं 10 क्वेश्चन भी करूंगी ब्रो, बट मैं अच्छे से करूंगी। एंड दिस इज व्हाट माय फ्रेंड आल्सो टॉट मी। माय फ्रेंड वाज लाइक कि तू इतना पढ़ती है, बट तेरे नंबर इसीलिए नहीं आते क्योंकि तू समझ के नहीं पढ़ती। लाइक तेरे अंदर कॉन्सेप्ट को इतना डीपली समझने की आदत नहीं है, तो इस चीज को ना आदत डाल। एक क्वेश्चन को बैठ के इतना सोच कि तेरा कॉन्सेप्ट बढ़ जाएगा। So this is a very nice learning which I got from her, and I'm so blessed and I'm so grateful कि भाई वो बंदी, लाइक मुझे, हम लोगों ने इतने मजे भी किए थे। एट द सेम टाइम वी वर लाइक वेरी चिल, वी वर यूज्ड टू टॉक गॉसिप एंड एवरीथिंग। पढ़ने के टाइम पे हमने पढ़ाई करी थी, नो डिस्ट्रैक्शंस, नथिंग। आई जस्ट लव्ड दैट एरा, आई मीन आई लव दैट एनवायरनमेंट। एंड अगर कभी लाइफ में मुझे दोबारा चांस मिले आइलैंड जाने का, आई वुड नॉट से मुझे जाना है। बिकॉज अल्टीमेटली मैं एक स्ट्रेस में थी, मैं एक प्रेशर में थी कि मुझे अच्छा परफॉर्म करना है। वो चीज तब मुझे दोबारा उस चीज को अंडरगो नहीं करनी। वट एवर सर्कमस्टांसेस, वट एवर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर आगे भी जाके, वट एवर लाइक प्लेसमेंट या फिर किसी के लिए भी, मैं नहीं चाहती कि मैं उस प्रेशर के साथ जीऊँ कि हाँ मुझे ये एग्जाम करके ही रहना है वरना दिस इज माई end. No. And I would advise all of the aspirants there that please never make the exam your life. It is a part of your life, but never make it your life. ठीक है। पढ़ने के टाइम पे पूरा पढ़ो, गिव योर कंप्लीट एफर्ट्स, लीव एवरीथिंग। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि तुम सब कुछ छोड़ दो, खाना पीना सब कुछ छोड़ दो, दैट इज अ बेसिक नेसेसिटी, बेयर मिनिमम होता है। बट तुम्हारे लिए जो प्यार होगा ना उस टाइम पे, जेई के टाइम पे, वो जेई होना चाहिए। मैं इतनी प्राउडली इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे टाइम पे ये था, मेरे अंदर इतना जिगरा था कि मैं डिस्ट्रैक्ट हुए बिना पढ़ी थी वो 1-2 साल। क्योंकि मुझे पता था कि मैं अगर अच्छे से आज भी पढ़ लूंगी ना, तो मैं आगे कॉलेज में वो चीज एंजॉय कर पाऊंगी, ऑल द कॉलेज लाइफ एंड एवरीथिंग। नो स्टडीज, इतना स्टडीज का प्रेशर नहीं है, मैं आराम से उस चीज को थिंकिंग कि भाई मेरा नहीं हो पाएगा। मैं फिर भी पढ़ रही थी, एंड या ऐसे करते 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 31 जनवरी आ गया। तो 31 जनवरी, 1 डे बिफोर माई जेई का अटेम्प्ट। तो उस दिन मुझे ऐसा फील हुआ सबसे पहले कि मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी, मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी, मुझे कुछ नहीं आता, आई मीन आई एम डन। मैंने, एक होता है ना फीलिंग आती है ना, दैट यू आर नॉट सेम एज यू वर लास्ट ईयर, वो फीलिंग मेरे अंदर नहीं आ रही थी। आई वाज लाइक मैं अभी भी वही 2023 वाली कृतिका हूँ जिसने अभी मेंस का अटेम्प्ट दिया था। एंड या मुझे कुछ नहीं आता, मतलब मेरे अंदर ऐसा फीलिंग आ रहा था। आई डोंट नो, मैं पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर रही थी, बट मैं लाइक कुछ कर ही नहीं पा रही थी। आई वॉज वेरी मच डिमोटिवेटेड कि मेरा आगे क्या होने वाला है, ठीक है।
बट मुझे इतना पता था कि यार मुश्किल लग रहा है, मुझे सिलेक्शन मुश्किल लग रहा है। तो अगले दिन मेरी मतलब पहले से ही मैं एकदम हो गई थी, मेरे को रात को नींद नहीं आई, नर्वसनेस हो रही थी, एंजाइटी हो रही थी, यू ऑल नो दैट। सो 1 फरवरी, शिफ्ट 1। हम सुबह, मेरा जो सेंटर था वो नोएडा था एंड मेरे घर से ऑलमोस्ट 2 घंटे दूर था, तो नोएडा में। एंड उस दिन हम लोग निकले थे अराउंड 6 बजे, एंड मुझे होती है मोशन सिकनेस एंजाइटी की वजह से, तो मुझे गाड़ी में बैठती ही मुझे पेट दर्द होता है एंड एवरीथिंग। सो मेरी हालत खराब हुई थी, आई वाज फीलिंग सो नॉशियस, आई वाज फीलिंग सो बैड, आई वाज फीलिंग सो एंजाइटी, मतलब एंजाइटी इतनी हो रही थी, एंड आई वाज फीलिंग, आई मीन द वर्स्ट आई कुड एक्सप्लेन। सो मैं गाड़ी में थी एंड या लाइक हम लोग बीच में कहीं रुके थे एंड वहां पर भी मेरी हालत इतनी खराब हुई थी, मैं खड़ी भी नहीं हो, आई मीन मैं एग्जैजरेट कर रही हूँ, बट या लाइक इतनी तेज बारिश हुई थी, काफी तेज बारिश हुई थी एंड प्रिडिक्शन नहीं था, बट आई डोंट नो हाउ डिड इट रेन ब्रो, लाइक एट दैट टाइम आई थॉट कि वाओ, इज दिस अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड, इज दिस अ साइन ऑफ अ मिरेकल। मेरे टाइम पे, मेरे को इस टाइम पे ये मतलब थॉट आ रहा था कि ओ माय गॉड, आई थिंक समथिंग्स गुड गोना हैपन। सो मैं एकदम ऐसे गाड़ी से उतरी थी, बिकॉज यू वर सपोज टू वॉक टू सर्टेन एक्सटेंट, एंड वहाँ गेट में चेकिंग वगैरह होती है, तो इतनी खराब चेकिंग होती है, इट्स लाइक वेरी स्ट्रिक्ट चेकिंग दैट यू कांट, you know, express, but those who have given JEE they already know that। तो सब कुछ, बारिश हो रही है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं भीग रही हूँ, मेरे पास छाता नहीं है एंड हाथ में बोतल नहीं है, आई ओनली हैड अ फोल्डर जिसमें मेरा एडमिट कार्ड था एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड। एंड मैं वो डॉक्यूमेंट को ऐसे ले जा रही हूँ एंड मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि मेरे चश्मा गिर रहा है, मेरे चश्मे, मेरे हुडी गीला हो रहा है, मेरे शूज गीले हो गए हैं, मैंने एकदम जैकेट पहना था, इट वाज फीलिंग सो यक। ठीक है, मैं भी सोच के देखती थी, आई वाज लाइक ब्रो, इट वाज सो यक, बट मुझे उस टाइम पे फर्क ही नहीं पड़ता था, आई वाज लाइक भाड़ में जाए, मैं पूरी गीली भी हो जाऊँ ना, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। आई वाज लाइक ड्रेंच्ड वेट, ठीक है, इट वाज रेनिंग वेरी, आई मीन वेरी बैडली। सो या मैं फिर कैसे कैसे करके हम लोग अंदर चले गए थे एंड मैं इतनी भीग गई थी, बट फिर भी अंदर तो इतना हीटर वीटर चल ही रहा था उस टाइम पे, मैं बैठ गई थी एंड मेरे अंदर इतना थॉट तो था कि भाई देख, मुश्किल लग रहा है, बट तू अपना बेस्ट दे क्या। तो एज यूजुअल आई न्यू, तो इतना मेरे मन में आ गया था कि मेरे दिमाग में, मेरे मन में ये आ गया था कि ठीक है, खेल खत्म अब। तो कंप्यूटर खुलता है, आई मीन वो वेबसाइट वट एवर यू कॉल दैट, मेंस का वो खुलता है एंड फर्स्ट मैंने देखा सेक्शन मैथ्स का खुलता है हमेशा, मैथ्स को देख के मेरी हालत खराब हो गई थी, बट आई नो कि पहला सेक्शन मैथ्स ही खुलेगा, तो मैंने सोचा था कि ये चीज मुझे दोबारा अटेम्प्ट नहीं करना है, आई कांट सी माई सेल्फ, मैं ब्लैंक आउट नहीं हो सकती, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फिजिक्स पे जाई, फिजिक्स गई तो यू नो ना, फिजिक्स भी मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी, फिजिक्स के क्वेश्चंस कुछ ठीक लग रहे थे, जो ठीक थे मैंने अटेम्प्ट कर दिया, जो मुझे लगे कि मुझे नहीं आता मैंने उस पर तुक्के मार दिए। केमिस्ट्री भी कुछ खास नहीं था, मैंने कुछ करके करके मैथ्स भी मैंने कर दिया था। सो या आई वाज, तो वही तो रिजल्ट ये था, 3 घंटे में मैं पता चल गया था कि ब्रो, क्या पता मेरी वैसी ही परसेंटाइल आई जैसे मेरी ड्रॉप के पहले आई थी, ठीक है। तो बस मुझे इतना था, मेरे को बस एक मोटिवेशन थी कि मेरे ड्रॉप के पहले जो मेरी परसेंटाइल मैथ्स में आई थी, इट वाज अराउंड 90, ठीक है, 90 परसेंटाइल के आसपास मेरी मैथ्स में थी, विच मोटिवेटेड मी कि हाँ मैं बेटर कर सकती हूँ। तो मुझे लगा कि मैं मैथ्स में उस टाइम जो मैंने तरकीब लगाई थी वो मैं इस टाइम लगा के आ जाती, क्या पता मेरी इस टाइम 90 परसेंटाइल आ जाए, थोड़ी सी मेरी लाइक थोड़ा समाज में थोड़ा इज्जत रहेगा कि हाँ मेरी 90 परसेंटाइल आया, ठीक है। हु इज गोना टेल दैट कृतिका, नो। सो मैं एकदम ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे अटेम्प्ट करके आ गई थी एंड यू नो कि 3 घंटे मेरे लिए एक बैटल ही था। बेड में सो गई थी, कभी उठी एंड मुझे एंग्जाइटी हो रही थी एंड मैं सबको ऐसे देख रही थी, साइड में देख रही थी, इधर देख रही थी, मेरे को लगा भाई ये लोग क्या खा के आए हैं, एक एक क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर रहे हैं कि भाई पता नहीं क्या, इनको क्या भगवान सीधा इनको आंसर भेजते हैं क्या। मैं इनको देख के ऐसे यर्न कर रही थी, इट्स कॉल्ड यर्निंग, ठीक है, लाइक हाउ इंटेलिजेंट दे आर, एंड काश मैं भी इतनी इंटेलिजेंट होती। साइड में वो बंदा डिस्कस कर रहे थे कि भाई मेरे 130 ही आ जाएंगे, आई मीन मेरे 140 ही आएंगे,
यहाँ पर एक लड़की कह रही है कि ब्रो पता है मैं 200 का एम कर रही थी, बट आई थिंक सो मेरे 150 के आसपास आ जाएंगे। And मैं ऐसे बीच में ऐसे बैठी हूँ। वो मीम आता है ना, जैसे वो जो शिनचैन वाला होता है, जो छोटा वाला शिनचैन, वो बोना शिनचैन होता है, वो मैं हूँ भाई। 150, 140, मैं कहाँ भाई 30 40। व्हाट द हेल। मैं बाहर आती हूँ एंड पेरेंट्स को ढूंढती हूँ। भाई मेरे पेरेंट्स को देख, मुझे देख के पता चल जाएगा, भाई पेरेंट्स होते हैं उनको पता होता है। उनको देख के मैं भी रोने लग गई थी, ठीक है। तो या आई वाज लाइक पापा नहीं हो रहा, पापा जी नहीं हो रहा। मम्मा को देख के भी मैंने बोला मुझसे नहीं हो रहा। मेरे पेरेंट्स वर लाइक कि तेरे उतने ही आएंगे, थोड़ी सी भी इम्प्रूव नहीं होगी। लाइक मुश्किल है पापा। मैंने सीधा सीधा बोल दिया, मैंने उनको शुगर कोट नहीं किया। लाइक कि क्या मेरी 60% ही आ पाएगी शायद, 60 70 आ पाएगी। मैंने ओपनली बोली कि मेरी पिछली बार ड्रॉप से पहले इट वाज 60, ठीक है। एंड माई पेरेंट्स वर अगेन, तू देख ले तुझे बीटेक करना है कि नहीं। दिस इज द फर्स्ट थिंग दे टोल्ड मी। बिकॉज एंड गाड़ी में बैठ के मैं ऐसे रो रही हूँ बैठ के, एकदम मेरी मुंह से एकदम शब्द ही नहीं निकल रहे थे। एंड मैं गाड़ी में बैठे बैठे अपने सर को मैसेज कर रही हूँ, जो मेरे एक और सर है जिन्होंने मुझे गाइड किया था। मैं उनको मैसेज करेंगी, सर आप मुझे थोड़ा गाइड करो कि आगे क्या करूँ। जेई हो गया मेरा, बहुत हो गया, मैं अब सेकेंड अटेम्प्ट नहीं देने वाली। आई एम नॉट गोना गिव द सेकेंड अटेम्प्ट, ठीक है, मेरे लिए हो गया खत्म ये सब। एनफ ऑफ दिस शिट। नाउ आई एम गोना सी व्हाट्स गोना हैपन। मेरे पेरेंट्स ने मुझे यही बोला था कि तू क्या करेगी, एंड जेई तूने देख लिया, जेई का लेवल तुझे देख, तूने लेवल देख लिया जेई का, तुझे पता चल गया लेवल क्या है, इट्स एक्सट्रीमली हाई बेटा। एंड यू नाउ वी हैव सी दैट यू डोंट हैव दैट एनफ आईक्यू टू पास दिस एग्जाम। नाउ यू कैन इमेजिन कि बीटेक कैसे होगा। एंड ट्रू दैट ये थॉट मेरे मन में भी आया था। तो मैं ऐसे एकदम डिमोटिवेटेड सी होगी, डिसहार्टेंड सी होगी, बिकॉज मुझे बीटेक ही करना था यार। एंड लाइक मेरे लिए पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मतलब मेरे लिए पूरा शैटर हो गया था, मतलब कांच का ग्लास कैसे एकदम टूट जाता है, वैसे मेरा मेरा दिल टूट गया था। एंड आई वॉज वेरी मच डिसहार्टेंड। एंड या उसके बाद मैंने सर से जाके बात करी थी एक दिन, मैंने और मेरी मम्मी से जाके, एंड माय सर वाज लाइक सी योर जेई एंड योर बीटेक इज नॉट रिलेटेड। आई मीन जेई के कोर्स के थ्रू तुम्हें बीटेक के कॉलेजेस मिल सकते हैं, बट जेई का जो तुम परसेंटेज ऑफ पढ़ाई होती है, मान ले 10% भी बीटेक में आता है, एंड 10% आता भी है तो शायद फर्स्ट ईयर में आता है, और उसके बाद तुम्हारा मेन के कोर के सब्जेक्ट शुरू हो जाते हैं। तो मेरा बस ये था कि मैं कुछ भी करूंगी, लेकिन मैं ये फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई डिग्री नहीं करने वाली बीटेक में भी। सो फॉर मी द सेफेस्ट ऑप्शन वॉज कंप्यूटर साइंस, बिकॉज लाइक यू नो ना कि कंप्यूटर साइंस मेरे पास नहीं था 11th 12th में, and मुझे नहीं आता था, बट मुझे इतना पता था कि अगर मैं पढ़ूंगी तो मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। नो ये मुझे नहीं पता था, ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे नहीं पता था। आई वॉज वेरी मच गिवन अप, मतलब मैंने गिव अप कर दिया था कि मेरे कभी अच्छे मार्क्स आ पाएंगे कि नहीं, मेरे कॉलेज में भी मैं एवरेज ही रहूंगी, क्या पता मेरी 5 6 सीजीपीए आ जाए, इतने ही आ जाएंगे। एंड हाँ, तुम्हारे आसपास के लोग भी तुम्हें बोलते रहते हैं कि हाँ तुम तो देख के कर लो बीटेक एंड एवरीथिंग। सो या मैं भी सोच रही कि यार मैं कैसे भी करके 6 सीजीपीए 7 सीजीपीए लेके आ जाऊँ, बहुत है, ठीक है। तो यार उसके बाद मेरा रिजल्ट आया था, एंड रिजल्ट एंड ऑफ माय जेई जर्नी। एंड ये मतलब मेरे लिए तो पूरा रोलर कोस्टर था। मैंने जितना मैं हो सके मैंने बताया था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू डोंट रिमेम्बर, ठीक है। इट्स लाइक ऑलमोस्ट क्या 3 साल पुरानी बात। एंड 3 साल पहले अगर तो मैं जाऊंगी अपने आप को देखूंगी तो मुझे शायद थोड़ा पता होगा कि हाँ मैंने और कितना पढ़ाई करी थी, बट जितना मैं सोच पा रही हूँ उससे ज्यादा ही मैंने पढ़ाई करी थी। एंड या यू कांट टेल, बट या मेरा जो रिजल्ट आया था वो मेरे एक्सपेक्टेशंस एंड मेरे हार्ड वर्क से मैच नहीं करा। एंड या इट वाज वेरी एवरेज। पिन कोड में मेरे रैंक आई थी। डोंट आस्क माय रैंक इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज आई डोंट वांट टू आंसर एनीथिंग रिलेटेड टू माय रैंक। खराब थी, पिन कोड में थी, एंड मोबाइल नंबर में तो नहीं थी, ठीक है, इतना तो खराब नहीं था, पिन कोड में था। एंड या लाइक पिन कोड के हिसाब से जो मुझे कॉलेज मिले थे गवर्नमेंट कॉलेज, बट मैंने कुछ ब्रांच इश्यूज एंड